हमें कुतुबुद्दीन जी की मदद से उन्हीं दंगों की तस्वीर बने हुए एक और शख्स का संपर्क मिला। हाथ में लोहे का सलिया और माथे पे भगवे रंग का कपड़ा बांधे अशोक मोची दंगों की दूसरी शक्ल बने। हम मिले अशोक परमार से, जिन्हें उनके काम का उपनाम अशोक मोची के नाम से भी लोग जानते हैं। आइए बात सुनते हैं अशोक जी की और उनका अभिमत जानते हैं। 2002 के बाद आप दंगों की शक्ल बन गए थे। आपको गूगल करे तो यही आता है। आप इस बारे में कैसा फील करते हैं? आप इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं? 2002ના કોમી રમખાણોમાં મારો ફોટો પ્રખ્યાત થઈ ગયો હતો, એના કારણે મારું અશોક મોચી તરીકે નામ પ્રખ્યાત થઈ ગયું છે. એ ફોટો એ 2002ના કોમી રમખાણોમાં મારો પ્રખ્યાત થઈ ગયો એક હિન્દુ સમાજના આઇકોનિક ચહેરા તરીકે. એક ફોટો ખરેખર આમ જોવા જાઓ ને તો ફક્ત એક માણસ તરીકેની જે ભાવના હતી એ ઘટના વિરોધમાં ગુસ્સાના આક્રોશનું એટલા પૂરતું જ હતું. પણ એ પછી ગુજરાત બંધના એલાન દરમિયાન જે કોમી રમખાણો થયા, અમાનવીને અત્યાચારો થયા, સામૂહિક હત્યાકાંડો થયા, જે અત્યાચારો થયા ને, તો મારા ફોટોને એની સાથે જોડી દેવામાં આવ્યો હતો. તો એ ખરેખર તો ખોટું જ હતું. એટલે મને પછી અમુક ટાઈમ પછી મને લાગ્યું કે આને સમાપ્ત કરવું પડશે, કે જે રમખાણો થયા એ તો ગુજરાતની જે અસ્મિતા છે એના વિરુદ્ધમાં જ હતા. ગુજરાતની અસ્મિતા છે કે ગાંધીજીનું ગુજરાત અને ગાંધી બાપુના જે સિદ્ધાંતો હતા કે સત્ય અને અહિંસા. હવે એ વખતના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ખરેખર તો માફી એમને માંગવી જોઈતી હતી, બરાબર, કેમ કે એ ખાલી કોઈ હિન્દુ નેતા એ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા. તો એમને ગુજરાતની અસ્મિતાનો ને ગુજરાતની સિદ્ધાંતોનો વિચાર કરવો જોઈતો હતો. અને હું જ્યારે આઇકોનિક ચહેરા તરીકે આખા હિન્દુ સમાજના આઇકોનિક ચહેરા તરીકે હું થઈ ગયો તો માફી માંગવામાં મને કોઈ શરમ નથી નડી. એ વખતે 2002માં લોકોના દુઃખ દર્દ જે જોયા હતા મેં ટીવીમાં બધે એમના ઇન્ટરવ્યૂ જોયા હતા, તો એક માણસ તરીકે આપણને લાગ્યું કે આ લોકોના જે જખમ થયા છે તો એ જખમ ઉપર આપણે બીજું તો ભલે કશું ના કરી શકીએ પણ મલમ તો કરી શકીએ છીએ ને. એટલે અમે એ બધી ભાવના એક મલમ તરીકે જ કરી છે લોકોના જખમો ઉપર. એવી રીતે હવે લોકોના જખમો પર મીઠું નથી વપરાયું, ગૌરવ યાત્રા કાઢી નથી. हमारी शहरनामा की टीम पहुंची गुलबर्ग सोसाइटी, जो 2002 के दंगों का पहला शिकार है, जहां दीवारें आज तक तब की लगी आंख से काली हुई पड़ी है। जरोखों के टूटे हुए शीशे जमीन पे बिखरे हुए हैं और घरों में 2002 के साल के कैलेंडर लगे हुए हैं। मानव वक्त 2002 में ही थम गया है। गुलबर्ग सोसाइटी एक ऐसी बस्ती है जिसमें धिक्कार की भावना की वजह से आवकार की भावना को ठेस पहुंची है। ऑडियो के माध्यम से आइए हम आपको ले चलेंगे गुलबर्ग सोसाइटी। सुनते हैं और महसूस करते हैं आवकार की आवाज। ટીવી છે, આમ આટલું હજી પડ્યું છે, ગ્લાસ પડ્યો છે, બોલ પડ્યો છે અને અહીંયા કેલેન્ડર છે જે 2000ની સાલનું છે, ઓક્ટોબર 2000. એના ઉપર બધું લખ્યું છે, ગેસ હિસાબ કરેલા છે કેલેન્ડર પર. કાચના તો બહુ જ ટુકડા છે. આઈ થિંક એસિડની બોટલ આવી હશે, પણ ફૂટી નથી. એટલે અહીંયા એક ટીવી પડ્યું છે. મોસ્ટલી કાચ બધા તૂટેલા છે. અંદર અત્યારે પક્ષીઓ રહે છે. આ દરવાજો મેં ખોલ્યો, લાઈક આ બંધ હતો એટલે અંદર પક્ષીઓ બહુ હતા. અને હજી દિવાલો ઉપર પેન્ટ થોડુંક છે, બળેલું છે. ફૂટેલી બોટલો પડી છે જે આપણને લાગે છે કે રાયટવાળાઓએ જ ફેંકી હશે. આ રૂમમાં પાછળથી એન્ટર કરીએ. હા, એ બધું મને ના દેખાય. બધા કબાટ ખુલ્લા છે, લઈ લઈને બધા ભાગ્યા હશે. બંધ કરવાનો ટાઈમ નહીં મળે. સ્વિચો પણ હજી ચાલુ છે.
गुलबर्ग सोसाइटी में हमारी मुलाकात हुई रफीक भाई से, जो दंगों के 3 महीने बाद रिलीफ कैंप से वापस गुलबर्ग सोसाइटी आए और आज तक सिर्फ वो ही है जो इस सोसाइटी में अपने घर में रह रहे हैं। हमने देखा कि वे एहसान जाफरी जी के घर के बाहर साफ सफाई कर रहे थे और पक्षियों के लिए पानी का रखा गमला वापस भर रहे थे जब हमने जाके उनसे थोड़ी बातचीत की। आइए सुनते हैं। रफीक मंसूरी। ये क्या है कि यहाँ पे सब सही हुए थे, तो हिसाब से अपने साफ सफाई रखते हैं, अगरबत्ती करते हैं। तो आप क्यों वापस रहे? अपने को डर नहीं लगता है ना, मौत तो एक ही बार आएगी ना, और बार बार तो आने वाली है नहीं। और यहाँ पे कोई आवाज़ रहता है? कोई नहीं रहता यहाँ पे, कोई नहीं रहता। अपने लिए तो क्या है, सरकार ने कोई न्याय करा ही नहीं। जैसे कि भाई चलो हो गया, वो भूल जाओ। अब नजर से आपको सबको मकान बनवा के देते हैं हम लोग, प्लास्टर है जो भी है बराबर। अभी सबके देखो ये सब टूटने वाले हैं, खंडर हो गए सब। 22 साल हो गया। तुरंत वापस आ गए थे? मैं 3 महीने के बाद में आया था। ये हमारा मकान भी पूरा खंडर ही हो गया था। फिर अभी मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे भाई के 2 बच्चे हैं बड़े वाले के, मेरे पप्पा बच्चे हैं, हम 2 भाई बच्चे हैं। मेरे पहले वाली मिसेस थी, मेरा 5 महीने का बच्चा था, वो भी ऑफ हो गया। मेरे भाई के 5 बच्चे थे छोटे छोटे। नहीं अपने बताते ही नहीं है उनको, मिसेस को सब मालूम है, बाकी बच्चों को नहीं बताते। और सरकार ये सब कुछ बना के दे दे, वापस जो है वापस बच जाए बस्ती। अपने तो वो चाहते हैं। और जिनने देखा है वो तो आता ही नहीं, डर के मारे नहीं आता। और हमने भी देखा है, यहाँ पे ढिगले पड़े लाश के, बहुत पूरा में आग थी, पूरा धुआं ही धुआं था। बीच में थे हम लोग, जब वो बिल्डिंग के ऊपर चले गए थे हम लोग, वो बिल्डिंग वाला यहाँ पे आ गया था, हम लोग उनके वहाँ ढाबे पे बच गए। और हमने तो ऊपर वाले छोड़ दिया, हमारे सामने लोग तड़प तड़प के मरे हैं। जिसने करा था हम लोगों ने, जिसको देखा है, लुटेला सब लेके गए, हमारे सामने तड़प तड़प के मरे। 2 कलाक हुआ था चमनपुरा ब्रिज पहुँचने में, हमको 2 कलाक हुआ था। इतनी पब्लिक थी। अभी अपने हथियार उठाने का कोई मतलब ही नहीं है, अपने को हथियार उठाने का क्या मतलब। जिसने करा उसको छोड़ दिया, उसको ऊपर वाले पे वो सजा देगा। ऊपर वाले की मेहरबानी थी तो बच गए, नई ज़िंदगी मिली हमारे को। न्याय तो कहाँ मिला ही है, सब छूट गए, न्याय तो मिला ही कहाँ है। इंसानियत तो क्या, अब इंसानी जिंदगी कहाँ रही है। करोड़ों रुपये का सोना चले गया, जाने चली गई। कुदरत में उतनी तो सच्चाई है, क्योंकि हम लोगों ने नाम लिखे ही नहीं। हमने किसी का नाम नहीं लिया, उसका ऊपर लिखा दिया नाम। वहाँ की अदालत में कोई नहीं बचेगा। जुल्म के खिलाफ नफरत के परे, क्या अतीत को भुलाकर नई जिंदगी शुरू की जा सकती है? या अतीत से सीखकर दोबारा ऐसी घटना को अंजाम न देना ही हमारी इंसानियत का सबूत है? कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ देर से मिलना भी इंसाफ ना मिलने के बराबर है। क्या इंसाफ मिलना हमारी इंसानियत का सबूत होगा? ये तो हमने बात की 2002 के आलमी इंसानियत की, लेकिन आज हमारे समाज के क्या हालात हैं? क्या हमारे बीच की दूरियां कम हुई हैं या हमारे बीच की सरहदों को हमने और भी ऊंचा कर दिया है? और इस नफरत से हमने क्या हासिल कर लिया? फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। अल्ताफ़ हुसैन हाली की ये नज़्म याद दिलाती है कि नफ़रत करना कितना आसान है, इंसानियत करने में शायद मेहनत ज़्यादा लगती है। कुतुबुद्दीन अंसारी जी के साथ हमारी पूरी बात सुनने के लिए इसके बाद का खास एपिसोड सुनना मत भूलिएगा। आप हमें सोशल मीडिया पर रेडियो नज़रिया 107.8 FM पर भी ढूंढ सकते हैं। साथ ही में हमारे सहभागी नथी नॉनसेंस को भी ज़रूर फॉलो करें। आप जहां पर भी हमें सुन रहे हैं, आप कमेंट्स के द्वारा फीडबैक दे सकते हैं और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये पैगाम इंसानियत को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद।